کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو درخواست دی گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ بجلی کے بلوں میں 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی منظوری دی جائے۔ تاہم نیپرا نے عوامی مسامات کے بعد 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ نیپرا نے ماہ جولائی کے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر اضافے کی منظوری دی ہے، جو ستمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ اگست کی طرح ستمبر میں بھی صارفین کو بھاری بھرکم بلز ادا کرنا پڑیں گے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ 650 میگا واٹ شارٹ فال کے باعث متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شہر میں گرمی کی شدت بڑھنے کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے اور لیسکو کی ڈیمانڈ 5000 میگا واٹ تک پہنچ گئی، جبکہ 4450 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 650 میگا واٹ شارٹ فال ہونے کی وجہ سے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ لیسکو کی جانب سے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شہر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ محکمہ خوراک ہی شہر کی کریانہ شاپس پر آٹے کی سپلائی میں رکاوٹ بن گیا۔ لائسنس کے حصول کے لیے کریانہ فروشوں کی سینکڑوں درخواستیں زیر التوا، مگر محکمہ خوراک لائسنس دینے سے گریزاں اور فلورز ملیں بغیر لائسنس کریانہ فروشوں کو آٹے کی ترسیل نہیں کر رہی۔ شہر میں عوام آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے۔ آٹے کی سپلائی یقینی بنانے والا ادارہ محکمہ خوراک خود ہی سپلائی چین کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ کریانہ فروشوں کے مطابق آٹے کے لائسنس کے حصول کے لیے محکمہ خوراک میں سینکڑوں درخواستیں زیر التوا ہیں، مگر لائسنس کا اجرا نہیں کیا جا رہا۔ 100 تھیلا 21 دن کا یا 22 دن کا 100 تھیلا ایوری نکالنے کے کیا رہتی ہے، کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ مفت کی لڑائیاں عوام گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو سبسڈی والا کھاتا ہے یہ ختم کر دیں اور ریگولر آٹا مارکیٹ میں دیں۔ اگر گورنمنٹ کو اتنا شوق ہے سبسڈی دینے کا تو اپنے پوائنٹ مقرر کر دیں، جن کو شوق ہوگا وہ لائنوں میں لگ کے لے لیں گے۔ گلبرگ، گلشن راوی، ٹھوکر نیاز بیگ، شمالی لاہور کے متعدد علاقوں دروگا والا، سلامت پورہ، شاد باغ اور متعدد آبادیوں کی کریانہ شاپس پر آٹا دستیاب نہیں۔ کریانہ فروش کہتے ہیں لائسنس والے کریانہ شاپس کو بھی ملیں آٹے کی سپلائی نہیں دے رہی اور محکمہ خوراک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے یہی بحران چل رہا ہے۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن بھی آٹا جو ہے نا متواتر نہیں آیا۔ ملوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پہ کوٹا کم ہے، ہم کہاں پہ دیں۔ مہینہ ہو جاتا ہے، آٹا نہیں آتا، آٹا جو آتا ہے وہ بلیک میں ہوتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے معاملے کی سنگینی کا فوری نوٹس لینے اور بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سیلاب کے باعث سبزیوں کی قلت، سبزیوں کے نرخ مزید 10 سے 30 روپے کلو تک بڑھ گئے۔ سرکاری نرخنامے اور اوپن مارکیٹ میں قیمتوں میں بھی تضاد۔ دکانداروں کی منمانیاں اپنے عروج پر ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ قانون پر عمل کرانے میں ناکام ہو گئے۔ افغانستان سے ٹماٹر آنے کے بعد ٹماٹر کی قیمت میں 300 روپے کی نمایاں خوشگوار کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث سبزیوں کی قلت ہو گئی ہے۔ مافیا نے ریٹ بڑھا دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف افغانستان سے ٹماٹر آنے کے بعد ٹماٹر کی قیمت سینکڑوں میں نیچے آ گئی ہے۔ تاہم شہر میں دکاندار دوسری سبزیوں کی قیمت سرکاری نرخنامے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے وصول کر رہے ہیں۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 160 روپے ہے، لیکن بازار میں 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز سرکاری قیمت 260 کی بجائے 350، تھائی لینڈ ادرک سرکاری قیمت 360 کی بجائے 400، چائنا لہسن سرکاری قیمت 270 کی بجائے 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ بند گوبھی مزید 20 روپے مہنگی ہونے کے بعد سرکاری قیمت کے مطابق 178 روپے کی ہو گئی ہے۔ تاہم بازار میں 250 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے اور کریلا سرکاری قیمت 155 کی بجائے 200، سبز مرچ سرکاری قیمت 155 کی بجائے 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے سرکاری نرخنامے پر عمل کروانے، غیر فعال پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے افغانستان سے ٹماٹر آنے پر قیمت کم ہوئی۔ آج ٹماٹر بھی ہے نا، کل ٹماٹر پر 600 روپے تھا، 600-500 روپے تھا، لیکن حکومت نے کوئی تعاون کیا ہے جس کی وجہ ٹماٹر 150 روپے منڈی ملا ہے، افغانستان سے آ رہا ہے۔ منڈی میں موجود مافیا سبزی کی قیمت مقرر کرتا ہے، مہنگی سبزی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافے کے بعد قیمت 2.5 روپے بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔
आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए 2 रुपये 7 पैसे जो है पेट्रोल जो है महंगा कर दिया गया है। डीजल की में भी 2 रुपये जो है 99 पैसे फी यूनिट का जो है इजाफा फी लीटर जो है महंगा किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह जो लाइट डीजल ऑयल की कीमत है उसमें भी 9 रुपये 80 पैसे फी लीटर तक जो है वो इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो हो चुका है, जो कि 15 सितंबर तक जो है वो यही रहेंगी। और जो वजारत खजाना का ये कहना है कि कोई नया टैक्स जो है लेवी टैक्स पे ऐड नहीं किया गया और बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो लोग के उम्मीद कर रहे थे आवाम के पेट्रोल की कीमतों में जो है कमी होगी, लेकिन कमी के बजाय जो है वो इजाफा कर दिया गया। ठीक है अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में लड़कियां बाजी ले गईं। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 66.37% रहा। 2 तालिबात ने सबसे ज़्यादा 1095 नंबर हासिल किए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा हबीब ने नताइज का ऐलान किया। सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली दोनों लड़कियां रहीं। मरियम यूसुफ और सबा साकिब ने सबसे ज्यादा 1095 नंबर हासिल किए। दोनों तालिबात का कहना है कि वो पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। देखिए नंबर आपको डिफाइन नहीं करते, तो इसलिए नंबरों की वजह से डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रगल्स जारी रखें और जो आपने बनना है उसके लिए बस कोशिश करें। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड मोमेंट है, बिकॉज इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैट्रिक के नताइज के मुताबिक 3 तलबा ने 1094 जबकि 10 ने 1093 नंबर हासिल किए। चेयरमैन लाहौर बोर्ड का कहना था कि नई पॉलिसी के तहत पोजीशंस का ऐलान नहीं किया जा रहा। फेडरल के अंदर इंटर प्रोविंशियल कमेटी है जिसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो डिस्कस करेंगे तो फिर सेकंड फेज़ का अनाउंस करेंगे। और थर्ड फेज़ एग्जैक्टली वो होगी जो कैम्ब्रिज की है, जिसमें सिर्फ ग्रेड होगा और ये एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं होगा। मैट्रिक इम्तिहानात में लड़कियों की कामयाबी का तनासब 74 और लड़कों की कामयाबी का तनासब 57% रहा। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 2,48,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1,64,000 उम्मीदवार कामयाब जबकि 83,000 उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब ना हो सके। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अकबर चौक अंडरपास और फ्लाईओवर का मंसूबा रवां साल शुरू किया जाएगा। LDA ने मंसूबे के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए जारी करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। LDA ने पंजाब हुकूमत से नए मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फंड जारी करने की इस्तदा कर दी। LDA ने अकबर चौक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे पर काम तेज कर दिया। DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 अरब 10 करोड़ के फंड जारी करने की समरी वज़ीर आला परवेज इलाही को इरसाल कर दी। आमिर अहमद खान का कहना है कि मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी तकमील से 1,26,000 ट्रैफिक मुस्तफीद होगी। मंसूबे से जौहर टाउन, टाउनशिप, फैसल टाउन, कोट लखपत, ग्रीन टाउन के रिहायशियों को फायदा होगा। पीको रोड से शौक चौक फ्लाईओवर जबकि शौक चौक से पीको रोड तक अंडरपास बनाया जाएगा। इंसाफ सरकार का यू टर्न। 4 बरस कबल मोबाइल हेल्थ यूनिट आउट ऑफ सोर्स करने की मुखालफत की, अब खुद मोबाइल हेल्थ यूनिट्स ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया है। गैर फ़ाल मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की अफादियत का ख्याल आते ही सैलाब मुतासरा इलाकों में भी मोबाइल यूनिट्स भिजवाने का फैसला किया गया है।
तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 साल कबल मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को आउटसोर्स करने की मुखालफत करते हुए मोबाइल हेल्थ यूनिट तहवील में ले लिए गए थे। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को बेकार रखने के बाद इनकी अफादियत का अंदाजा होने पर अब दोबारा ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को ठेके पर देने के लिए मुख्तलिफ फर्मों की पेशकश भी हासिल कर ली गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मोबाइल हेल्थ यूनिट सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी 3 बरसों से एडहॉकिज्म का शिकार है। जूनियर डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर को एक मरतबा फिर से डीजी पंजाब कोटा का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया है। डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर पौने 2 बरस पहले भी आर्जी तौर पर डीजी के ओहदे पर विराजमान रहे और करप्शन के केस का भी सामना कर रहे हैं। आज़ा की पेवनकारी को रेगुलेट करने के लिए कायम इकलौता अदारा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी 3 बरसों से एडहॉकिज्म का शिकार है। 2019 में प्रोफेसर फैसल समूद की वफात के बाद पंजाब होटा को मुस्तकिल सरबराह नहीं मिल सका। हुकूमत ने एक मरतबा फिर जूनियर डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर को पंजाब होटा के डीजी का आर्जी चार्ज दे दिया। डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर पहले भी पौने 2 बरस आर्जी तौर पर डीजी के ओहदे पर बरजमान रहे हैं और उस अरसे के दौरान डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर को करप्शन के इल्जामात का भी सामना है। इल्जामात के बावजूद उन्हें दोबारा डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का आर्जी चार्ज थमा दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का शालीमार चौर में शहनाई, अल्ताज, जीएम बैंक्वेट और जंजुआ मैरिज हॉल पर छापा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स SOPs यकीनी बनाने तक बंद कर दिए गए। फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून ने शालीमार टाउन में शहनाई, अल्ताज, जीएम बैंक्वेट और जंजुआ मैरिज हॉल पर कार्रवाई की। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स इस्लाह तक बंद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस और वर्कर्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स न होने पर कार्रवाई की गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि लाइसेंस के बगैर खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाइसेंस का मकसद खुराक का कारोबार करने वालों को कवानीन का पाबंद करना है। डीजी ने कहा कि लाइसेंस जारी करने से पहले फूड बिजनेस को फूड अथॉरिटी टीमें चेक करती हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर पूरा उतरने वाले फूड बिजनेस को ही लाइसेंस जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी सतह पर कोरोना वबा में कमी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए सफ़र से कबल फास्ट ट्रैक की शर्त ख़त्म। NCOC ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया है। आलमी सतह पर कोरोना केसेस कम होने पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए सफ़र से कबल फास्ट ट्रैक की शर्त ख़त्म की गई है। इससे कबल मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से पहले फास्ट ट्रैक ऐप पर तिबी मालूमात देना लाजमी था। NCOC ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया है। बेशतर ममालिक ने भी बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए तिबी और सफ़र की तफसील की फ्राहमी को ख़त्म कर दिया है। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक पर तफसीलात दिए बगैर सफ़र कर सकेंगे। की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने 3 बच्चे बाप की तहवील से लेकर अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने तीनों बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने गार्डन कोर्ट को 3 सितंबर को फैसला करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह के बाद इंसाफ की जिम्मेदारी हम पर है। CCPO गुलाम महमूद डोगर समेत दीगर पुलिस अफसरान अदालत पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात के चलान पेश करने में ताखीर और ट्रायल पर अहम फैसला। अदालत ने नाकिस कारकर्दगी पर प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कार्रवाई करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। SP इन्वेस्टिगेशन मुकदमात के चलान पेश न करने वाले तफ्तीशी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करे। साबिक DIG सैयद जुनैद अरशद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत ने करार दिया है कि जुनैद अरशद का केस नए तरमीमी नेब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत दूसरी अदालत में मुंतकिल हो रहा है। अदालती दायरे इख्तियार के फैसले में कुछ देर लग सकती है। आर्जी रिलीफ के लिए मुल्जिम जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर करे तो मंजूर कर लेंगे। एंटी करप्शन कोर्ट से म्यो अस्पताल से अद्वियात की चोरी स्कैंडल में मुलविस केस की समाअत हुई। अदालत ने 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 15 सितंबर तक तौसी करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट में ही प्लाटो की खुर्द-बुर्द के केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक जनरल सेक्रेटरी LDA एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मियां जमीर हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के इवज मुल्जिम की रिहाई का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत में मिसेस खैरुद्दीन शॉप फिरोजपुर रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। दावा 8 माह तक एडवांस रकम लेने के बावजूद वॉशरूम में कमोड की फिटिंग करके ना देने और चक्कर लगाने पर किया गया। अदालत ने शॉप के मालिक को 28 सितंबर को तलब कर लिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बाद पंजाब असम्बली में कालाबाग डैम बनाने की बाज़गश्त सुनाई दी। अरकान असम्बली का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों से बचने का वाहिद हल नए डैमों की तामीर है।
पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 52 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। सैलाब की तबाहकारियों पर अरकान असम्बली ने काला बाग डैम बनाने का मुतालबा किया। हुकूमती रुकन चौधरी ज़हीरुद्दीन ने कहा कि मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए काला बाग डैम की तामीर नागुज़ीर है। राजा बिशारत ने कहा कि वफाकी हुकूमत मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र काला बाग डैम की तामीर के लिए इक़दामात करे। MP ज़हीर अब्बास खोखर ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। रुकने असम्बली महविश सुल्ताना और सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान 10वें नंबर पर। सैलाब से हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान का कहना था कि तमाम सियासी पार्टियां हुकूमत में हैं। सैलाब ज़दगान के लिए सबको मुश्तरका काविशें करना होंगी। इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया बिल 2022 पेश किया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली इजलास 7 सितंबर दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ उमर असलम। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन अब्दुल करीम की क़यादत में मुलाकात। वफ्द ने पोल्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द ने गवर्नर पंजाब को 15 सितंबर से एक्सपो में शुरू होने वाली 3 रोज़ा पोल्ट्री एक्सपो में भी मदऊ किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। पोल्ट्री मसनूआत का ताल्लुक आम आदमी से है, इनकी कीमतें आम आदमी की पहुँच में होनी चाहिए। पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल करीम का कहना था कि पोल्ट्री पर सेल्स टैक्स कम होने से अवाम को मुर्गी का सस्ता गोश्त और अंडे फ्राहम किए जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी की बारिशों और सैलाब के बाद गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हदायत। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की कि अशियाए खुरनोश बिलखसूस सब्जियों और दालों की कीमतें एतदाल में रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। टमाटर और प्याज के निर्ख कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन पर कड़ी नज़र रखी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तलब और रसद के फ़र्क को कम करने के लिए टमाटर और प्याज की दरामद की हौसला अफजाई की जाएगी। टमाटर और प्याज की मुकर्रर निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मॉडल बाज़ारों में काउंटर्स कायम किए जाएँ। नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कोई रियायत न बरती जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेहत कार्ड पर दस्तयाब तिबी सहूलतों का जायज़ा लेने के लिए महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में इजलास। सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्राहम की जाने वाली सहूलतों के इंस्पेक्शन के साथ मज़ीद अस्पतालों को सेहत कार्ड के लिए रजिस्टर्ड करने का भी फैसला कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेक्रेटरी समेत हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और हेल्थ केयर कमीशन के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में सेहत कार्ड पर फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद आमिर जान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कमिश्नर लाहौर ने अफसरान को शहर की सफाई और इंसदाद डेंगू मुहिम पर फोकस रखने की हदायत की है। कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर उमर जान का अफसरान और दीगर स्टाफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने जिम्मेदारियां संभालने के बाद अपनी तरजीहात का ऐलान करते हुए कहा कि लाहौर के बड़े चैलेंजेस डेंगू, सफाई और प्राइस कंट्रोल करना है। लाहौर में सफाई का जायज़ा लेने के लिए सुबह 5 बजे मुआयना करूँगा। उन्होंने कहा कि लाहौर की खूबसूरती और तरक्याती स्कीमों पर फोकस होगा। सेहत से वाबस्ता अमूर और तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पुलिस के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए। IG पंजाब ने अजला और रीजन की सतह पर खेलों के मुकाबले सालाना शेड्यूल के मुताबिक बाकायदगी से कराने की हदायत जारी कर दी हैं। IG पंजाब फैसल शाहकार की ज़ेर सदारत पंजाब पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के मुतालिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। पुलिस स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, वसाइल की दस्तियाबी समेत कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में नुमाइंदगी पर गौर किया गया। जबकि पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए लाहे अमल तय करने पर भी गौर किया गया। DG पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड साहबजादा शहजाद सुल्तान और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन ने कहा कि पुलिस के खिलाड़ी कबड्डी, वॉलीबॉल टीम समेत दीगर खिलाड़ियों में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। गुज़श्ता साल पंजाब पुलिस ने कौमी सतह के मुकाबलों में 24 मेडल्स हासिल किए हैं।
CCPO लाहौर ने थाना जनूबी छावनी की हदूद में जामे मस्जिद शोहदाए पुलिस का संगे बुनियाद रख दिया। गुलाम महमूद डोगर ने इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई की और ईंट रखकर तामीराती काम का आगाज़ किया। शोहदाए पुलिस के इसाले सवाब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक, सर्कल अफसरान और पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस की फ़राइज़ की ईमानदारी से अंजाम दही के ज़रिए खल्के खुदा की खिदमत दरअसल इबादत ही की एक खूबसूरत शक्ल है। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की ज़ेर सदारत इजलास डिविजनल SPs की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। DIG ने इश्तिहारी मुलज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इजलास में SP सिक्योरिटी साइद अजीज़, SP डोल्फन उस्मान भट्ट और तमाम डिविजनल SPs शरीक थे। DIG ऑपरेशंस ने SP से मुतालिक डिवीजन्स के क्राइम और मजमूई कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में इश्तिहारी मुलज़मान और क्राइम कंट्रोल के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। आएँ सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। लाहौरियों की कसीर तादाद अशियाए ज़रूरिया कैंप में जमा करा रही हैं। आप भी लाएँ आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और खुश्क मेवाजात। हम पहुँचाएँगे पाक फ़ौज की मदद से मुतासरीन तक ज़िम्मेदारी के साथ। ताजिर, डॉक्टर और वकील सब हमारी काविश का हिस्सा बने। गर्म कपड़े, कंबल, खैमे, जूते जो कुछ हो सके जमा करवाएँ। सिटी 42 हेड ऑफिस में सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया इमदादी कैंप कायम है। इमदादी कैंप में रोजाना शहरियों और मुखय्यर हजरात की कसीर तादाद अशिया जरूरियात अतिया कर रही है। अशिया में आटा, चावल, रस, फ्रूट केक, बिस्किट्स, जूस, दूध और दीगर अशियाए जरूरियात शामिल है। इमदादी कैंप में जमा होने वाली अशिया को पाक फौज के जरिए मुतासरा इलाकों में भिजवाया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सिटी 42 की भी काविशें जारी हैं। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध में कवरेज और इमदादी टीमें भिजवा दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में रोजाना 10,000 अफराद को पका हुआ खाना फराहम किया जा रहा है। सिटी 42 इमदादी टीम के हमरा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का 8 रुकनी वफ्द भी मुतासरा इलाकों में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। शहर की ताजिर बरादरी भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। उर्दू बाजार, अनारकली, लाहौर चैम्बर समेत मुतअद्दिद मार्केटों के अहदेदारों की जानिब से अतियात जमा करने और इमदादी सामान मुतासरा इलाकों को भिजवाने का सिलसिला जारी है। ताजर बरादरी ने भी मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए कमर कस ली। उर्दू बाजार के नौमुंतखब अहदेदारान सदर अबूजर गफारी गोहर और जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल ने दीगर कायदीन के साथ मिलकर 45 लाख रुपए के अतियात और इमदादी सामान इकट्ठा किया। अबूजर गफारी ने हर दुकान से जाकर अतियात इकट्ठे किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम 45 लाख इकट्ठा कर चुके हैं और बाकी निकल रहे हैं। अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। तो ये जो भाई हमारे इस वक्त सड़कों के किनारे अपने घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, उनकी रिलीफ के लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम इसको कंप्लीट कर देंगे और कल हमारे यहाँ से बाजार से हमने 45 लाख रुपए इकट्ठा किया है। आप हैरान होंगे कि बाजार के तमाम दुकानदारों का जो रिस्पॉन्स है बड़ा अच्छा है। वो लोग हम पे एतमाद कर रहे हैं। अनारकली बाजार के ताजरों ने सदर हाजी नईम खान की क़यादत में सैलाब मुतासरीन के लिए गारमेंट्स और इशियाए खुरनोश इकट्ठी की। सदर अनारकली बाजार हाजी नईम और सदर अंजमन ताजरान लाहौर शाह नजीर ने मुतासरीन की बहाली के अज़म का इयादा किया। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा कि मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर चैम्बर के मेंबरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने एक इनिशियल फंड 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अब बहुत सारी और कंट्रीब्यूशन शामिल हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने 3 फेजेस के अंदर इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को और इस फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को टारगेट किया। मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का जो ताल्लुक है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से होता है। तो जितने भी जो ताजर है वो मैं देख रहा हूँ कि इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम अपने जितने भी मुतासरीन बहन भाई हैं उनकी हम मदद करें। कैश के हमने खैमे और मिट्टी के तेल के चूल्हे और जो भी हमें डायरेक्शन आई हुई है उसके मुताबिक हमने वो करके इंशाल्लाह वो भी कल शाम को हमने एक ट्रक और भिजवाना है और उसके बाद भी इंशाल्लाह ताला कैंप जारी रहेगा, क्योंकि मामला बहुत आगे ख़राब है और ये मामला कई माह पे मुहित और चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आजमकरात मार्केट के ताजरों ने भी सदर मलिक ज़मान नसीब की क़यादत में सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद के लिए अतियात इकट्ठे किए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहरिक। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात और एसोसिएशन के इश्तराक से इमदादी सामान के ट्रक मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल MS गंगाराम अस्पताल की मौजूदगी में इमदादी सामान के ट्रक जनूबी पंजाब के लिए रवाना किए गए। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि सामान में आटा, दालें, चावल, घी, बच्चों का दूध समेत पीने का साफ पानी और दीगर सामान शामिल है। उन्होंने फैकल्टी मेंबरान, इल्मुनाई और तलबा व तालिबात से अपील की कि वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भरपूर किरदार अदा करें। MS गंगाराम अस्पताल ने कहा कि मरहलावार इमदादी सामान और अद्वियात के साथ साथ डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी मुतासरा इलाकों में खिदमात अंजाम देगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मेहर अली अकबर से। जी मेहर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और वजारत ख़जाना ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे इजाफा कर दिया गया है और इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 236 रुपये तक जा पहुँची है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज़ है जिसमें दिन ब दिन इजाफा नाकाबिल कबूल है। मज़ीद आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने अपने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जल्द अज जल्द जो है वो तब्दीलियाँ करके पेट्रोल की कीमत जो है वो 236 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊँ कि डीज़ल की कीमत में भी 2 रुपये 9 पैसे तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीज़ल की जो कीमत है वो 247 रुपये से भी तजावुज़। ठीक है मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। म्यू अस्पताल गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाह न मिलने का मामला। गार्ड्स ने इमरजेंसी के बाहर धरना दे दिया। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर फाकों पर मजबूर हैं। गार्ड्स की जानिब से मजीद क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी, म्यू हॉस्पिटल्स के गार्ड्स को तनख्वाहें ना मिलने का मामला। तनख्वाहें ना मिलने पर म्यू हॉस्पिटल्स के जो गार्ड्स हैं उन्होंने इमरजेंसी के बाहर धरना दे दिया है, जिसके बायस इमरजेंसी में आने और जाने वाले मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। गार्ड्स का कहना है कि पिछले 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, गरीब लोग हैं, खाने को पैसे नहीं। मज़ीद तफसीलात मेरे साथ यहाँ पे गार्ड्स भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कितने माह से आपको तनख्वाह नहीं दी गई और जो मालिक हैं वो क्या कहते हैं, क्यों तनख्वाह नहीं दी जा रही? सर मालिक तो पहले नंबर से इधर आ ही नहीं रहे, ठीक है। जिससे बात करते हैं वो कह रहा है जी कि हमें नहीं पता, अपने ठेकेदार के पास जाएँ, अपनी कंपनी के पास जाएँ, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, ठीक। कर रहा से हम भूखे और प्यासे सोए भी नहीं, हमारी आंखें देख ले, हम इधर ही बैठे हुए हैं, हमारी कोई बंदा बात नहीं सुन रहा, ठीक है। 2-2 माह के बिल देने वाले हैं, ठीक है। हम किसके पास जाएं? ना हुकूमत हमारी बात सुने, ना जो इधर के अफसर है काम तो हमसे ये लेते हैं, कोई और तो नहीं लेता। इनके पास जाते हैं और ये कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। हम किसके पास जाए? ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। PC होटल में टैक्स टॉक्स के ज़ेर एहतमाम 5वीं सालाना इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर मुल्की टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के मुकाबले भी कराए गए। PC होटल में मुनक्ता 5वीं इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल करने के मौजू पर रोशनी डाली गई। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और यूरोप के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माहिरीन ने शिरकत की। US कौंसल जनरल विलियम के मकूले समेत मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। टेक्सटॉक के चीफ एडिटर यूसुफ फरीद ने अपने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जदीयत से हमकिनार करना है। Most importantly, the solutions. This platform belongs to each one of you and everyone is always welcome to share and explore the ideas that can drive the Pakistan textile sector towards the new gateway of opportunities. चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर है। नई नस्ल की टेक्सटाइल में दिलचस्पी खुश आइंदा है। दुनिया में टेक्सटाइल में एक नाम है हमारा जी एक्सपोर्ट का। तो मैं पहले यही समझता था, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम बस नॉर्मल से चीज़ें बना के बेचते हैं, लेकिन मैंने आज जब थीसिस बच्चों के इनोवेशन का काम देखा तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो माशाल्लाह मेहनत भी करते हैं और दुनिया के साथ मुकाबला भी कर सकते हैं।
निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के दरमियान टेक्सटाइल डिजाइनिंग के मुकाबले भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। तलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिजाइनिंग के शोबे को फरोग मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका यहाँ पे मिल रहा है और बहुत से नए आइडियाज़ दूसरों से भी मिलते हैं और साथ में हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और ज़्यादा हमारा जो डिज़ाइन है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी अप्रोच है, सिंस हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग अपॉर्चुनिटी को लाइक कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ तो रहे होते हैं बट साथ वी नीड सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि हाँ जहाँ पे हम लोग कुछ बना के एटलीस्ट अप्लाई तो कर सकें। मारूफ डिजाइनर असफर हुसैन ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग के मुकाबलों में पहले 3 बेहतरीन डिजाइनर का इंतखाब किया। कैमरामैन राना अजीम के साथ अब्दुल्ला मारूफ, CT42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।